This the section in 1 Samuel chapter 15 was coming to my heart as we are listening about humility and what God has to speak about humility. और जैसे हम नम्रता के विषय में परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, तब पहला शमूएल अध्याय 15 से यह वचन मेरे ध्यान में आ रहा था. Here we know the story about Saul being reprimanded by Samuel because he didn't obey God fully. और यहाँ पर हम वचन के उस भाग को पढ़ते हैं जहाँ पर जो शाऊल राजा था, उसे जो शमूएल भविष्यवक्ता नबी था, जब वह आकर उसकी ताड़ना करता है, उसे शिक्षा करता है, डांट लगाता है. There's a verse in 17 saying that, Samuel said to Saul, is it not true that though you were little in your own eyes, you were made head of the tribes of Israel? Question mark. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहला शमूएल अध्याय 15 वचन 17 में, शमूएल ने कहा, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या इजरायली गोत्रों का प्रधान न हो गया? You know, Saul had completely disobeyed God and God had already rejected him as a king, though he continued to be a king, but God had warned him, and then through Samuel what a word, and he made him to realize earlier you were something else, but now your head is swollen up, you're thinking about something else. और हम यहाँ पर देखते हैं शाऊल के विषय में कि परमेश्वर उससे क्रोधित थे और नाराज थे, लेकिन फिर भी हम वहाँ पर देखते हैं कि शाऊल लगातार राजा बना रहा और राज्य करता रहा. लेकिन यहाँ पर शमूएल आकर अंत में उससे कहता है कि तू पहले कुछ और था, अब कुछ और हो गया है. Is it not true that you were little in your own eyes, you were made head? और यहाँ पर वह आगे कहता है शमूएल उससे, शाऊल राजा से, कि जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, तब क्या इजरायली गोत्रों का प्रधान न था? What was this littleness that Saul had before he was corrected by God? What was that littleness I was thinking about? और मैं उस विषय पे सोच रहा था कि वह क्या उस शाऊल राजा के विषय में छोटा था जिसके विषय में परमेश्वर ने उसकी ताड़ना की थी. We know that story of Saul, that when God had chosen him to be a king, he was hiding himself, going behind the baskets and finding way how I can disappear in the backdrop. He knew that they were finding him to make him a king, but his inner desire, not wanting to be humble, but that inner desire was to go and hide himself. और यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल के विषय में कि जब परमेश्वर ने उसे राजा बनाने के लिए उसका चुनाव किया था, तब वह क्या कर रहा था? वह वहाँ पर भीड़ से बचकर अपने आप को टोकरियों के पीछे छुपा रहा था और वह छिपने की कोशिश कर रहा था. ऐसा नहीं था कि उसके हृदय में नम्र होने की लालसा थी या नहीं, लेकिन वह अपने आप को और उसे छिपा रहा था कि वह कैसे बच निकले. So now he was a king and he has fought the Lord's battle and came out victorious. He had all the honor and fame, and then he was a king, and now these things went into his head. लेकिन अब हम देखते हैं कि वह राजा बनने के बाद में कई सारे वह युद्ध में जाता है, युद्ध जीत कर आता है, और उसके बाद में वह गर्वान्वित महसूस करता है, घमंड उसके अंदर आने लगता है कि वह जो आदर सम्मान जो उसे मिलता है. Yeah, now I can offer lambs, and I can offer do Levi's work, and I can Samuel is getting delayed, brother is getting delayed, or whatever. So I am the boss now, I'm the king, I can execute the plans, I have the authority and all that. He started thinking, and then he completely lost the way. और वहाँ पर हम शाऊल के विषय में आगे पढ़ते हैं कि वह अब अपने विषय में ऐसे सोचता है कि ठीक है, शाऊल को आने में देर हो रही है, तो अब मैं याजक का जो काम होता है, लेवी गोत्र के लोगों का जो काम है बलि चढ़ाने का, वह मैं स्वयं ही कर सकता हूँ, खुद कर सकता हूँ. और ये सारी बातें उसके विचारों में चली जाती है, उसके मन में चला जाता है और वह कुछ और करता है. Just think about ourselves. We can think about ourselves. We come to church for so many years. Now we have the expert opinions to give about this one and that one. I know. I've been there in the church for so long. In the Christianity I've seen, I can instruct elders or deacons or things that have to be done this way or that way. This brother doesn't know. So that can be the mentality we can have that when God is watching us, just like you watched Saul. और उसी प्रकार से हम सभी की भी ऐसी एक मन का विचार हमारा भी हो सकता है कि मैं कई सालों से, वर्षों से कलीसिया में आ रहा हूँ, तो हम अपने विषय में ऐसा भी सोच रख सकते हैं कि हाँ, मैं अब प्राचीनों को या जो अगुवे होते हैं या निर्देशक होते हैं उनको कोई सुझाव दे सकता हूँ, और हम एक अच्छा विशेषज्ञ बनकर इस भाई या उस बहन के विषय में कोई अपनी राय और सलाह देने लग जाएं कि यह कैसा है, वह कैसा है. मैं जानता हूँ, मैंने काफ़ी सारी मसीहत देखी और ऐसे हम अपने विषय में विचार कर बैठे हैं. When I came to church first, I was just sitting in a back seat, and I didn't bother whether I was given any option to sing or play or preach the word of God. I was happy in my littleness, that small littleness of my own world that I was living, and God was happy with me. But now I'm so
old in the church and I should be given the prominent position. That kind of thinking and that kind of thought should ring a bell in our hearts. God doesn't want those kind of things to happen with us. मुझे याद है कि जब मैं काफ़ी वर्षों पहले जब कलीसिया में नया नया आया था, शुरू में तो मैं पीछे की कुर्सियों में जाकर बैठता था और मुझे यहाँ पर ऐसा विचार मन में नहीं आता कि कभी मैं कि आगे आकर मुझे गीत गाने का या कोई परमेश्वर की सेवा करने का अवसर मिले। लेकिन जब अब जैसे कई सारे सालों के बाद, वर्षों के बाद, अब जब मैं सोचता हूँ कि नहीं मैं सयाना हो चुका हूँ, पुराना हो चुका हूँ, तो मुझे कोई कलीसिया में एक पदवी दी जाए, कोई पद मुझे मिलना चाहिए, तो ऐसा विचार हमारे मन में आने लगे। Brothers and sisters, realize that the first day we came to church and God saved us. We really came to realize that God should have sent me to hell and God saved me, saved us, and I should be thankful in whatever position I am. I should be challenging myself to aspire higher, to walk the ways of God and grow up higher. But that God wants us to see from where we are picked up and the littleness that position we took when we first came. That's what God is happy to see us, not a self-exalted position that which we don't have, and we claim to have that and start expressing opinions and this, that and the other and be unsatisfied now. So we should not be like that. और जैसे कि हम अपने विषय में ऐसा सोचते हैं कि शुरू के समय में जब हम प्रभु के पास आए थे तो एक वास्तविकता का एहसास हमारे अपने जीवन के विषय में हमारे अंदर था कि परमेश्वर ने दिया था कि मैं कैसा था और किस स्थान से परमेश्वर ने मुझे उठाकर लाया है, कहाँ से मुझे बचाकर लाया है। लेकिन अब कई सारे वर्षों के बीतने के बाद में अब मैं अपने विषय में ऐसे सोचता हूँ कि मुझे कोई कलीसिया में पदवी दी जाए या मैं पुराना हूँ तो मैं अब ऐसा विशेषज्ञ बन बैठूँ कि किसी को सुझाव और सलाह देने का काम करूँ। तो परमेश्वर यही चाहता है उस पुराने, उस बीते हुए समय में वह जो वास्तविकता का एहसास कि कहाँ से हम उठाए गए हैं, उसका एहसास हमें हमेशा बना रहे। We read in Matthew chapter 11. हम जाएंगे मत्ती उसके 11वें अध्याय में जहाँ पे यीशु मसीह के बारे में यहाँ पे बांटा गया था। That it says in verse 29, "Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart." यहाँ पे लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। And I was just thinking of a verse from Proverbs chapter 4 and verse 23. मैं सोच रही थी नीति वचन 4 अध्याय उसके 23 वचन में से। It says, "Watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life." 4:23 4:23. नीति वचन 4 उसका 23 वचन यहाँ लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। So I was just thinking of what Jesus said about himself, that learn from me, for I am meek and lowly in heart. मैं सिर्फ सोच रही थी यीशु मसीह ने अपने बारे में क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैं मन में नम्र और दीन हूँ, मुझसे सीखो। So I was just thinking that, I need to keep like this verse which says that in 4:23 we saw that watch over your heart with all diligence, for from it flow the springs of life. मैं ये वचन को सोच रही थी जो कि नीति वचन 4 उसके 23 में है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। So what is there in my heart? तो मेरे हृदय में क्या है? Am I gentle and humble in heart? क्या मैं अपने हृदय में नम्र और दीन हूँ? Outwardly it is very easy for us to show that we are humble. देखिए बाहरी रूप से हम ये दिखा सकते हैं कि हम नम्र हैं, But what about the state of my heart? परंतु मेरे हृदय का हाल क्या है? That is something only I know. सॉरी, That is something that I know. वो ऐसी बात है जो सिर्फ मुझे पता है। Just like Brother Kevin was sharing, even I have thought about this many times, that when I was new to the church, I didn't want to be somebody. I didn't want to come up here and speak. I didn't want to sing. I didn't want to do anything. I was just happy and content being a sister in the church. जैसे कि भाई केविन ने बात की थी तब उन्होंने बांटा था, ये जो बात है मेरे मन में भी शुरुआती दिनों में था, जबकि मैं चुपचाप एक जगह बैठना चाहती थी, आगे आकर गीत गाना या प्रचार करना या कुछ करना नहीं चाहती थी, परंतु एक बहन के रूप में साधारण रूप से बैठना चाहती थी। But as the years go by, we see that corruption enters inside you. हम देखते हैं जैसे साल बीतते जाते हैं तो हमारे मन में जो है भ्रष्टता आ जाती है।
And it's good that we have God's word to show us where we are wrong. और बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर का वचन है हमारे पास जो हमें दिखाता है कि हम कहाँ पे गलत हैं। I would like to share from Ephesians chapter 4 and verse 20. मैं बांटना चाहूँगी यफिसियों 4 उसके 20वें वचन से। It says, "But you did not learn Christ in this way." यहाँ पे लिखा हुआ है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। So what is it that we have learned and that we have to unlearn? और ऐसी क्या चीज़ है जिससे हमने सीखी है और हमें पता है कि उसको नहीं सीखना था। So many things as we grow in the Lord, we see that maybe we were not like that in the beginning and now we have changed. और बहुत सारी बातें परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें पता चलती है कि शुरुआती दिनों में हम ऐसे नहीं थे, परंतु अब हम जो है बदल चुके हैं। It says, "But you did not learn Christ in this way, if indeed you have heard him and have been taught in him, just as truth is in Jesus." यहाँ पे लिखा है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा पाई नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। So the truth is in Jesus, and I thank God for that. Jesus is the Word of God, and He is truth, and He shines His light on our hearts. यीशु मसीह ही सत्य है, परमेश्वर का वचन ही सत्य है और परमेश्वर मसीह जो सत्य है उसका वचन जो है हमारे हृदय में जो है प्रकाश उंडेलता है। And God is not just playing a game with us. परमेश्वर जो है सिर्फ हमारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहे। He's very serious about the fact that He has brought us into His kingdom. और परमेश्वर इस विषय में बहुत ही गंभीर है कि परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में लेकर आए हैं। And He is speaking to us and He is telling us, you need to become humble. और वो हमसे बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम्हें अब नम्र बनना ही होगा। And let us take that seriously. Like, even the last 2 Sundays, the message I heard was something that really touched me. And, we heard that how for 40 years the Lord had to deal with the Israelites and they did not change. और 2 हफ्ते पहले जो वचन हमने सुनी थी उसने हृदय को छुआ कि 40 साल तक परमेश्वर इज़राइल जन से जो है बातें करते रहे, उनके बीच में कार्य करते रहे, फिर भी इज़राइल जन जो है वो बदले नहीं। So it can be so in my own life that 40 years God can keep speaking and there's no change in my life. ये मेरे जीवन के साथ भी हो सकता है कि 40 वर्षों तक परमेश्वर मेरे जीवन में बात करते आ रहे हैं परंतु मेरा जीवन बदल नहीं रहा। I thank God that we can come here and be warned by the word of God. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, हम यहाँ पे आ सकते हैं और परमेश्वर के वचनों के द्वारा जो है हम बदल सकते हैं, सीख सकते हैं। And Jesus is the truth and He said, "Learn from me." और यीशु मसीह ही सत्य है और उन्होंने हमसे कहा कि हम उनसे सीखें। And He's such a wonderful person to learn from. और वो सबसे अद्भुत व्यक्ति है जिससे हम सीख सकते हैं। We can easily go and learn from Him because He's gentle. He's not like a hard taskmaster or like a hard teacher, When you don't learn, He beats you and hits you and discourages you. He's not like that. और हम यीशु मसीह के पास बहुत ही आसानी से जाकर सीख सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही नम्र और दीन है। वो ऐसे व्यक्ति नहीं है जो बहुत ही सख्त है, मार पीट कर जो है अगर हमने सुनी नहीं कि हमें सुधारने की कोशिश करते रहे। So I thank God that we can learn from Jesus, and He's a living God, and He's dealing with us, like we heard also that verse which we learned from the memory verse, that He awakens my ear morning by morning that I can listen as a disciple. प्रभु यीशु मसीह बहुत ही भले हैं, सत्य हैं, जैसे कि हमने वचन में से सुना मेमोरी वर्स में से कि वो मुझे बोर ब बोर मुझे उठाता है कि मैं एक शिष्य की नाई उसको सुन पाऊँ। Thank God. आमीन। बहुत ज़रूरत वचन जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए चाहिए था वो प्रभु ने हमसे बात किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। Today we heard a word that was really necessary for my spiritual life and I thank God for hearing it. नम्रता के सीखने के लिए एक सबसे बड़ा उदाहरण है मैथ्यू
11:29 में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा है कि मुझसे सीखो. And the greatest example is written in Matthew, that is Jesus, and we need to learn from him. हम कई मसीह संत लोगों से कुछ नम्रता सीख सकते हैं, लेकिन वो एक थोड़ा समय के लिए होगा, लेकिन जब हम मसीह से सीखेंगे कि नम्रता क्या है. We can learn from the saints, but it will only last for some time. The greatest example is Jesus. ब्रदर जैक हमेशा कहता है कि कौन सा जो डालिया है हमेशा झुका हुआ रहता है, जिसके अंदर फल है या जिसके अंदर फल नहीं है. And Zach brother says is this way, that which kind of branch always leans down? Is it the fruitful one or is it the fruitless one? आपका जवाब यही रहेगा कि जिसके अंदर फल है वही डालिया हमेशा झुका हुआ रहेगा. And you will answer it this way, that the branch which has fruit will lean towards down. तो जिसके अंदर फल नहीं है उसका क्या हाल है? And the one that doesn't have fruit, how is it leaning on? How is it standing there? तो हमेशा सीधा रहेगा वो. That will stand upright. It will go up. वो कभी झुकेगा नहीं. It will not lean down. तो वो ये दिखाता है कि मुझ में कोई फल नहीं है, मैं झुकूंगा नहीं. And it shows this way that it doesn't have fruit and it will never bend down. इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि नम्रता मुझसे सीखो, मेरे अंदर वो फल है, ऐसा फल है जो हमेशा के लिए है. And this is why Jesus says that you need to learn it from me. I am fruitful and this fruit will last forever. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम देखते हैं कि कुछ पेड़ों में फल कुछ सीजन के लिए होते हैं. Brothers and sisters, we see that the fruit lasts on the trees for some seasons. अभी हम समर में देखा जाएंगे, मैंगो का सीजन है, अभी सिर्फ मैंगो फल अभी ही मिलेगा. If we see summer, we get mangoes only in summer season. अब कोल्ड सीजन में जाएंगे, ऑरेंज का सीजन रहेगा, वो ऑरेंज का फल ही मिलेगा वो समय में. Then there is another season where we'll get only oranges in that. उसी तरह एप्पल का सीजन रहेगा, वो समय वो भी फल मिलेगा. And then we see apple fruit, then we'll get it from लेकिन only for some season. वो सीजन गया तो वो डालियाँ सीधा हो जाएगा. But when the season goes, the tree becomes empty क्योंकि फल नहीं है अभी. because there is no fruit there. तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो, मैं ऐसा सीजन में हमेशा हर सीजन में फलवंत रहा हूँ मन में दीन होकर. That is why Jesus tells us to learn from him, because he has been fruitful throughout all the seasons. हम एक गीत गाए शुरुआत में, तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं चलना चाहता हूँ, तेरे जैसा मैं देखना चाहता हूँ. We sang a song in the earlier part where it says that I need to learn from you, I need to walk like you, I need to speak like you. तो किसी ने आपको कोई भाई बहन या विश्वासी या अविश्वासी कुछ आपको कुछ ऐसा बात बोली है, लेकिन तुरंत आप उसने एक एडम को स्वभाव लेकर आपने जवाब दे दिया, तो आप यीशु मसीह के जैसा चल पाया उस वक्त. And if some brother or sister has spoken something hurtful to you and you have given the reply with Adam's nature, are you walking like Jesus? एक साधारण बातचीतों से हमारे अंदर गुस्सा आ जाता है, लेकिन जब यीशु मसीह को देखेंगे, पतरस का किताब में लिखा है उसको गाली दिया गया है. Just by normal talking, we feel angry sometimes. But if we look at Jesus, he has been insulted a lot of times. हम किसी को कुछ उल्टा बोला वो लोग धमकी देते हैं, लेकिन यीशु मसीह यहाँ किसी को उल्टा नहीं बोला, लेकिन उसको धमकी दिया गया है. If somebody says anything wrong to us, we insult them. But Jesus never said anything wrong, but still he was insulted. लेकिन वो सच्चा पिता के हाथ में सारा चीज सौंपने का कारण ये था कि वो मन में नम्रता से जिया है. But he gave everything into God's hand because he was humble in his heart. क्योंकि ये दिखाता है कि नम्रता का चिन्ह है कि हमारे अंदर वो फल हर सीजन में दिखाई देते हैं. And this is the sign of being humble, that we have जैसे fruits in all the season. ऐसा नहीं कि सिर्फ कलीसिया में आएगा तो हम लोग एक नम्रता के मन लेकर आएंगे, बाहर जाने के बाद हमारा ब्रांच सीधा हो जाती है. And it's not like when we come to church we are humble, but when we go out of the church in the world, the branches become straight. या प्राचीनों के सामने हम एक नाटक का जीवन जी सकते हैं, लेकिन घरों में हमारी नम्रता क्या है हम पता चल जाता है. We can live a life here in front of the elders, but the place where we go after,
will know how we really are. अशया की किताब में लिखा है कि जब स्वर्गदूत लूसीफर सोचा कि मैं ऊंचे पद पे जाऊंगा, इसने 5 बार सोचा. And Lucifer thought that I will go above God 5 times. तो उसकी नतीजा क्या हो गया है? वो वहाँ से गिरा हुआ है. एक स्वर्गदूत ना रहा वहाँ पर वापस. And what was the result? He was not an angel anymore. He fell down from that position. वो वहाँ से गिरा हुआ है, परमेश्वर की उस जगह से गिरा हुआ है. And he fell down from the heaven. और यीशु मसीह फिलिप्पियों की किताब 2 अध्याय में लिखा है कि जब वो परमेश्वर होके भी मनुष्य बना, मनुष्य होके भी एक सेवक बना, इतना नीचे पद उसने लिया, दास का पद लिया, इसलिए पिता ने उसको स्वर्गीय स्थानों पर बिठाया. And it's written that Jesus, being a God, he humbled himself much more less than a man, and that is why God exalted him to the highest place. So आज वो स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान है. Now he is seated at the throne with God. इसका कारण ये है कि वो हर सीजन में, ना कि जो फल आता है वो सीजन, हर सीजन में, हर दिन, हर फल, हर घड़ी, 24 और 365 दिन वो अपने मन में दीनता का स्वभाव प्रकट किया. This was the reason that he expressed himself. He was humble in all these seasons, not in a particular season. एक वचन है मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया. पहली पत्रस 5:5 में लिखा है कि पहली पत्रस 5:5 में लिखा है कि नम्रता को हम किस तरह धारण करना है. And in 1 Peter chapter 5 verse 5 it's written, how can we express the humbleness? You younger men likewise be subject to your elders, and all of you clothe yourselves with humility toward one another, for God is opposed to the proud but gives grace to the humble. तो ये वचन मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला कि नम्रता को एक कपड़े की तरह धारण करना है. So this verse has encouraged me a lot, and it tells us that we have to dress ourselves with humility. सपोज कल्पना करो मैं नाला सोपारा से चर्च में आया हूँ. कल्पना करो कि मैं एक अच्छा कपड़ा पहन के आया हूँ. Just imagine that I am coming from Nala Sopara to church wearing a very nice cloth. कल्पना करो कि मेरा शर्ट के अंदर या शरीर के ऊपर कोई ऐसा घाव है जो बहुत बुरी तरह से बास आ रहा है. And just imagine that there is a hurt and there is a scar in my body that is smelling very bad. बट उसको मैं कवर किया हूँ मैं अपना शर्ट पहनकर. But I am covering it with a nice shirt. अब किसी को पता नहीं है कि मेरा शरीर के अंदर क्या बदबू आ रहा है, लेकिन ये शर्ट जो मैं पहना हूँ वो पूरी बुरी चीज़ों को कवर कर दिया. Nobody knows where is this smell coming from within my body, but I have worn this nice shirt. Everybody can see that nice shirt. और मेरे पास आकर आप अच्छी तरह से बातचीत कर रहे हैं. And all of you are coming and talking to me very nicely. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारी जो है नम्रता उस तरह होना चाहिए कि एक कपड़ों की तरह हम पहनना चाहिए. हम Brothers and sisters, this is how we should clothe humility. वचन में लिखा है कि नम्रता को एक कपड़े की तरह धारण करना है आपको. It's written to clothe ourselves with humility. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर हमारे नंगेपन को देख चुका है. Brothers and sisters, God has seen our nakedness. परमेश्वर हमारी सारी हालत को जान चुका है. And He has tested all of us. हमारे जीवन की आखिरी घड़ी को उसको पता है. He knows where our end is. हमारा भविष्य पूरी इसके हाथों में रचा दिया है He has already planned our future. और वो परमेश्वर हमें कहता है कि नम्रता को अपने कपड़े की तरह पहनना. And then God says to clothe ourselves with humility. So it's very challenging. और परमेश्वर ने जूना करार में बहुत लोगों का उदाहरण दिया. मूसा के बारे में, पृथ्वी में सबसे बड़ा नम्रता व्यक्ति मूसा है. And there's an example, Moses, who was the meekest person on the face of the earth. सिर्फ अब इस जूना करार में इस मोसेस के बारे में पढ़ेंगे, बाद में वो घमंड होने पे भी देख पाएंगे हम लोग. If we read more about Moses, we see that he had become proud. इसलिए नया करार में एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति पहले कहा नम्रता मुझसे सीखो. And that's why only one person in New Testament said that, learn from me. वही है यीशु मसीह. And that was Jesus. मुझसे सीखो, मैं मन में दीन हूँ. Learn from me, for I am humble in ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, प्रभु इस वचन में आपको प्रकाशन दे और आशीष करे. May this word reveal your heart. धन्यवाद करते जो कुछ भी आज सुनने के लिए मिला. Thank God for everything we have heard today. जब परमेश्वर कलीसिया से बातें करता है तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए वो मेरे लिए था.
whenever God speaks to us, we need to accept that this word is for me. परमेश्वर ने देखा होगा कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं घमंड भरा है, इसलिए प्रभु ने वचन के द्वारा हमसे बातें की है। God has seen that we are proud, and that is why He is speaking. हम सोचते रहेंगे हम घमंडी नहीं है, लेकिन बाइबल कहता है परमेश्वर मनों का जांचने वाला परमेश्वर है। We may think that we are not proud, but Bible says that God tests our heart. यीशु मसीह कहता है कि मैं मन में दीन हूँ। Jesus says that I am humble in my heart. और जैसे सिस्टर अनिला ने कहा, क्या हम बाहरी तौर पर दीनता दिखाते हैं लोगों को? And just as Sister Anila said that we show humbleness from outward. क्या हमारे अंदर से वो दीनता है? Are we humble from our heart? यीशु मसीह कहता है मैं अंदर से दीन हूँ, इसलिए तुम मुझसे सीखो। Jesus says that I am humble from my heart, and that is why learn from me. जो लोग बाहर से दीन है उससे हम कुछ सीख नहीं सकते हैं। The people who are humble from outward, we cannot learn from them. जो लोग बाहर से दिखावा करते दीन होने का, उससे हम कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। We cannot learn anything from the people who are showing it from लेकिन outward. यीशु मसीह कहता है मैं अंदर से दीन हूँ, इसीलिए तुम मुझसे सीखो। And Jesus says that I am humble from my heart, so learn from me. सो यीशु मसीह क्या हमें सिखाना चाहते थे? And what is Jesus trying to teach? तो इब्रानी अध्याय उसके 5वें अध्याय के 8वां वचन में लिखा है, पुत्र होने पर भी In Hebrews, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखी। 5 verse 8 5 verse 8. Although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered. तो यहाँ पर लिखा है वो पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाया। And it's written that even though he was a son, he bared. वो पुत्र होने के बाद यहाँ संसार में आकर एक राजा के जैसा जी सकता था। After coming to the earth, he could have lived like a king. क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं था। Because he never sinned. वो सामर्थ्य से भरा हुआ था। He was filled with power. वो प्रचार करता तो लोग चंगाई पाते थे। When he preached, people would get healed. वो मुर्दों को जिलाता था। He used to raise people अंधों को from रोशनी dead. देता था। He used to give light to blind. कितने उसके पीछे ऐसे फॉलोअर्स हो सकते थे आराम से। He could have had so many followers. जैसे आज हम देखते हैं कितने सारे लोग अपने आप को भगवान बना के बैठे हैं। Like we see today, so many people are making themselves as God. और लोग उनका पीछा करते हैं। And many people follow them. लेकिन यीशु का जब भी किसी ने बड़ाई करना चाहा, वो वहां से भाग गया। And whenever Jesus was being exalted by human, he ran away from there. और उसने हर बार महिमा परमेश्वर को दिया। And every time he gave glory to ब्रदर्स एंड God. सिस्टर, हम जो कुछ भी करते हैं उसमें महिमा हम रखते हैं या परमेश्वर को मिलता है? So brothers and sisters, whatever we do, are we giving glory to ourselves or to God? अगर वो महिमा हम ही रखना चाहते हैं तो हम उस शैतान के समान हो जाएंगे। If we are trying to keep that glory for ourselves, then we are like Satan. लेकिन हम जैसे हमने सुना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो कहता है तू बढ़े और मैं घटता जाऊं। But as we see John, that he says that Jesus, you may grow more and I may grow क्या less. हमारे अंदर भी वैसा ही स्वभाव है कि प्रभु मैं चाहे कुछ भी करूं, आप बढ़ने चाहिए उसमें से? Do we have this kind of behavior that God, you may increase but I may और लोग decrease? मेरी तारीफ नहीं करें, मैं घटता जाऊं। And may people not tell me, encourage me, or give me appreciation, but let me go down. ब्रदर्स एंड सिस्टर, ऐसा मेंटालिटी अगर हम रखेंगे कि प्रभु मैं कुछ भी करूं उसमें आपकी बढ़ोतरी हो, आपका नाम ऊंचा हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर हमारे मन के अंदर ऐसी धारणा हमने पैदा रखा है, And if we have this kind of behavior in us that Lord, you may be exalted and I may never be exalted, तो वो परमेश्वर के जैसा बनना होता है। so that is being like Jesus. तो हमने यहाँ पर सीखा यीशु पुत्र होने पर भी उसने कोई अधिकार नहीं दिखाया। And here it is written, although being a son, he never showed his authority. कभी उसने नहीं कहा मैं स्वर्गीय पिता का पुत्र हूँ, मेरा सुनो। And he never said that I am the child of our heavenly उसने Father, कहा listen to हमें, me. उसने स्वर्ग खोला और उसने कहा कि ये मेरा पुत्र है, तुम उसकी सुनो। And the heaven opened and God said that this is my son, listen to him. लेकिन यीशु ने कभी नहीं कहा मैं स्वर्ग से आया हूँ, तुम मेरी सुनो। But Jesus never said that I came from heaven, listen to me. उसने कहा मैं वही करता हूँ जो मैं पिता से सुनता हूँ। And he says that I only do those things that God tells me उसने to do. कभी अपने आप को ऊंचा नहीं किया। He never exalted himself. और दूसरी चीज है, हम देख सकते हैं फिलिप्पी अध्याय 2 में, In Philippians chapter 2 we see, उसके 8वें वचन में लिखा है, and in verse 8, 7वें वचन में लिखा है, उसने अपने को शून्य कर दिया। and in 7 it's written that he made himself so low. और 8वें वचन में इंग्लिश ट्रांसलेशन में अच्छा लिखा है, वहां पर लिखा है कि वो आज्ञा मानकर ओबीडिएंट रहकर नम्र बना। And it's written by being obedient, he listened. सिस्टर पढ़ सकते हो 8वां 2 verse 8. इंग्लिश या
Being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the देखो point यहाँ पर of लिखा है, he death. humbled himself by obedience. And it's written that he humbled himself by being obedient. तो हम नम्र कैसे बन सकते हैं? सिर्फ आज्ञाकारी रहकर. And how can we be humble? We can be it by obeying God, कुछ काम करके नहीं, and not by our work, कुछ सेवकाई करके नहीं, not by serving, कुछ अच्छा दिखावा करके नहीं. not by showing इस anything good. परमेश्वर के नजर में हम्बलनेस क्या है? And what is being humble in front of यहाँ God? पर हम देख सकते हैं 2:8 में. We can see it in chapter 2 verse 8. वहां पर लिखा है कि वो आज्ञाकारी रहकर वो नम्रता का धारण किया और कब तक रहा? प्राण जाने तक. And it's written that he humbled himself by being obedient and until when? To the point of death. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, हम कई बार चूक जाते हैं. And brothers and sisters, we may stumble a lot of times. इसके लिए हमेशा हमको प्रभु का अनुग्रह का जरूरत है. And that is why we need God's grace. और बाइबल कहता है जब जब हमारे अंदर घमंड आएगा परमेश्वर हमको नीचे करेगा. And Bible says whenever we are proud, God will oppose us. और जो नम्र रहता है उसको परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करता है. And whoever is humble, God will give them grace. उससे हम अपने आप का जीवन जांच सकते हैं. And that's how we can test our life. क्या हम हर पापों के ऊपर दिन प्रतिदिन जय पा रहे हैं? Are we having victory over sins उसका every day? मतलब हमें परमेश्वर से अनुग्रह प्राप्त हो रहा है. And that means that we are receiving grace from God. लेकिन क्या कोई पाप हम पर अभी भी प्रभुता कर रहा है? घमंड, अहंकार, चिड़चिड़ापन, अभी भी हम उसमें घिरे हुए हैं? But if any sin has victory over us, has dominion over us, are we still being proud? उसका मतलब हम प्राउड है. And that means that we are proud. इसीलिए हम प्रभु से अनुग्रह नहीं प्राप्त कर रहे हैं. And that is why we are not receiving grace. इसके लिए हमें विक्ट्री नहीं प्राप्त हो रही है. That is why we are not getting victory. परमेश्वर दीनों को अनुग्रह प्रदान करता है. God gives grace to humble. क्या हम सबको अनुग्रह चाहिए? Do we all need grace? बाइबल कहता है दिन प्रतिदिन मेरा कृपा तेरे लिए नया बनता है. And Bible says that every day my grace is for you. उसका मतलब है परमेश्वर हर दिन हमको वो अनुग्रह देना चाहता है. And this means that God wants to give us grace every day. लेकिन किसको मिलेगा वो? But who will receive that? लाखों की भीड़ आएगी लेकिन मिलेगा किसको? If a million people come, who will receive that grace? किसको मिलेगा ब्रदर्स एंड सिस्टर? Who will receive that grace? जिसका मन नम्र है परमेश्वर के सामने. Whoever's heart is humble in front of God. सो प्रभु हम सबकी सहायता करे कि हम अंदर से प्रभु हमको दीन बनाता जाए. So may God help each one of us that from our heart we become humble.